I'm fine. I'm in my car at the moment in Maryland. So you will be Can attended. you hear me well? Yeah, I can hear you. I can hear you. So we are just waiting for Seema and Deep to join, and then I think she's there. हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू एवरीवन। ओके, सो नेथन, आई वांट टू इनवाइट यू टू कम एंड इंट्रोड्यूस डॉक्टर विजय। तो नेथन अभी डॉक्टर विजय को इंट्रोड्यूस करेंगे। Okay, first of all, thank you everyone for joining us this weekend. If you have the link, please share it with your family and friends and team members. The topic that we have tonight is really important. You know, our health and well-being is something that I think all of us have come to understand is critical. And Dr. Vijay is really an extraordinary human being. He's a wealth of knowledge. He's going to be sharing with us tonight about the health around blood pressure. So, for those of you who don't know Dr. Vijay, he's a physician and he's an I&O psychologist, management guru. He's a spiritual guide, and he's got more than 30 years of experience in holistic health and wellness. He's the CEO and founder of Sahib Holistic Development Consultancy, and he's got a YouTube channel. He's an educator. Really, just a lot that he can share and learn with us. The thing that I love about Dr. Vijay and his approach is it's always holistic. It always takes into consideration both the physical side of it, the mental side of it. Tonight we're going to be talking about he's going to be talking about the nutrition side of it and everything. So, without further ado, Dr. Vijay, please introduce us and educate us around the science of blood pressure. Oh, that's great. That's great. So I think as an panelist, I'm more or less not. The chat is not visible to me, but then I request Seema to look at the chat and then keep me posted if there are any queries related to that. Yeah, there is a So question and answer section below. For those of you who have questions for Dr. Vijay, please, you can put them in the Q&A that you'll see at the bottom, and we can either answer them as we go, or we can just take all of the questions at the end. अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है, प्लीज आप Q&A वाले सेक्शन में डालिएगा। एंड आप चैट में अगर कुछ डालते हो तो डॉक्टर विजय, आई विल मैनेज दैट, वो मैं मैनेज कर लूंगी। And ठीक, I will end में I'll bring up all the questions that people asked. चलिए लेट्स शुरू करते हैं। Okay, सो thank you. फ्रेंड्स, वेलकम या वेलकम ऑल। ये जो इम्पोर्टेंट ब्लड प्रेशर का एक टॉपिक है, जिसको जिसको हम लोगों ने सोचा था कि इसके ऊपर पे बात की जाए, इसको प्रमोट किया जाए, इसको समझाया जाए लोगों को। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। रिसेंटली आई लॉस्ट माय ब्रदर इन लॉ because of the internal carotid hemorrhage, and he has experiencing the diabetic hypertensive crisis, and that has given a very shock to all of our family members and me very much, because and we I know that many others are there in the those who have also suffered because of the hypertensive crisis, and has lost the friends and family members because of that. So let's start. I have a screen in front of you. I would like you to tell me about your perception. Is it possible for the audience to say something or to write it in chat? Seema? They can write it in chat. Okay. So this is one screen which is shared Under the in front of Q&A. you. क्या दिख रहा है आप लोगों को, और आपको क्या समझ में आ रहा है इस फोटो को देखने के बाद? Okay.
I'm on spotlight, right? कुछ एनी फीडबैक आ रहा है किसी से? One person is saying कि my BP suddenly goes up sometime. It's 200 by 100. What is the basic reason behind such shoot up and how I can control? राइट राइट, ये सारे क्वेश्चंस हम लेंगे। पहले हम लोग, आप, आई वांट यू ऑल टू बी पार्ट ऑफ माय प्रेजेंटेशन, गेट इन्वॉल्व सो दैट यू कैन लर्न वेरी वेल, एंड फिर आपको आपके प्रश्न सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, दिस इज द लाइक जो बैलेंस है, वहाँ पे एक तरफ हेल्थ है, एक तरफ वेल्थ है। और हम यूजुअली प्रेजेंटेशन में ये पूछते हैं कि भाई हेल्थ इज वेल्थ, ये स्टेटमेंट कहा जाता है, तो हेल्थ इंपॉर्टेंट है या वेल्थ इंपॉर्टेंट है? और हमेशा जवाब यही आता है कि हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है, जान है तो जहान है। सो दिस इज व्हाट, इफ यू आर देयर एंड देन ओनली एवरीथिंग एल्स इज देयर फॉर यू। सो I just want to grab your attention for the world's NCD, like, see, there is something, okay, burden on this. Okay, now this NCD kills around 41 million people around the world every year. तो 4 करोड़ 10 लाख लोग अगर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से मरते हैं, उसमें से 17.9, ये जो आपको स्टैटिस्टिक दिखा रहा हूं मैं, ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज से मरते हैं, कैंसर से उसके बाद में, और फिर उसके बाद क्रॉनिक रेस्पिरेटरी इलनेस, और फिर डायबिटीज। डायबिटीज में किडनी डिजीज भी इन्वॉल्व है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये सारे लोग 80% जो डेथ हो रही है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से हो रही है। इसलिए हमें ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को समझना बहुत जरूरी है। और उससे भी जरूरी हमारे लिए ये समझना इसलिए जरूरी है कि 77% जो लोग होते हैं, ये लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में इनकी डेथ होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से। तो हमारे इंडिया में ये बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है कि जो टोबैको यूज है, फिजिकल इनएक्टिविटी है, अल्कोहल और अनहेल्दी डाइट और एयर पोल्यूशन, ये मेजर रीजंस है इसके। अब इसको देखिए कि यहाँ पे भारत के ऊपर इसका बोझा कैसे पड़ रहा है। तो भारत में 100 लोग जब मरते हैं, उनमें से 26 पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज। और कार्डियोवास्कुलर डिजीज ये नंबर 1 रैंक, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये नंबर 1 रैंकिंग कंडीशन है जो डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रही है। फिर उसके बाद रेस्पिरेटरी है, फिर कैंसर है, नियोप्लाज्म इज अ कैंसर, और फिर डायबिटीज और क्रॉनिक किडनी डिसऑर्डर्स, ये इंपॉर्टेंट नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है। कम्युनिकेबल डिजीज का परसेंटेज 28% है, जिसमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ये मैटरनल न्यूनेटल डेथ का आती है, अदर इन्फेक्शंस आते हैं। तो और 12% जो है वो सेल्फ हार्म, वायलेंस और ट्रांसपोर्ट इंजुरीज की वजह से मरते हैं। तो आपको ये इंपॉर्टेंट, इसको मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि मोस्ट ऑफ द एस्टिमेट सजेस्ट दैट कि हमारे भारत के ऊपर इसका बर्डन जो है, ये लगभग 5 से 10% जीडीपी का पड़ता है। अब इसमें क्या होता है कि हेल्थ कॉस्ट एक्सपेंसेस आ जाते हैं, जो प्रीमैच्योर प्रोडक्टिविटी लॉस हो रही है बिकॉज ऑफ डिसेबिलिटी, वो आती है। और एक प्रीमैच्योर मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी, या तो प्रीमैच्योर लोग मरते हैं या फिर उनको डिजीजेस हो जाती है जिसके कारण से वो फंक्शन नहीं कर पाते। तो इसका बर्डन, सोशो इकोनॉमिक बर्डन इसके ऊपर पड़ता है, फैमिली पे पड़ता है, और पर्सनल लॉस भी इससे बहुत सारे होते हैं। इसका टोटल एक्सपेंडिचर अगर आप देखेंगे तो ये नियर अबाउट 35,512 फॉर एनसीडी के लिए आता है, और उससे कम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए आता है। और इसमें यूजुअली जो आता है, कंसल्टेशन फीस आती है, डायग्नोस्टिक टेस्ट आते हैं, मेडिसिन आती है, और अदर रिलेटेड एक्सपेंसेस। तो ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसलिए होता है क्योंकि हम ये सोशो इकोनॉमिकली इसको अफेक्ट करता है। साथ में लाइफ अगर जाता है तो उसकी कॉस्ट कोई बेयर नहीं कर सकता, उसका उसका मूल्य कोई लगा नहीं सकता। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एनसीडी 60% कॉज कर रहा है, 12% इंजुरी और chronic ये इंपॉर्टेंट स्लाइड को बताने का मेरा मकसद ये है कि इस चीज को हमको सीरियसली लेना है, ताकि हमको ये प्रॉब्लम ना हो और हमारे किसी अपने को भी ये प्रॉब्लम ना हो। अब ये जो क्यों इसके ऊपर हाइपरटेंशन के ऊपर आ रहे हैं, ये आपको यहाँ पे दिखेगा कि हाइपरटेंशन पे हम लोग इसके लिए आ रहे हैं कि हाइपरटेंशन ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है।
मेजर मॉडिफाइबल मतलब क्या कि इसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि हाइपरटेंशन जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट फेलियर, स्ट्रोक और क्रॉनिक किडनी डिजीज और डिमेंशिया जैसे बीमारी के लिए रिस्क फैक्टर है। और इसको साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि इसके कोई मैनिफेस्टेशन नहीं होते। 90 to 95% ऑफ पीपल जो होते हैं हाइपरटेंशन से सफर करने वाले, इनको कोई साइड इफेक्ट, कोई साइन एंड सिम्टम नहीं होते हैं। हमारे आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि इंडिया एंड चाइना वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हाइपरटेंसिव पेशेंट्स का रिकॉर्ड किया गया है यहाँ पर। और इसी के चलते 220 मिलियन लोग जो है इंडिया में हाइपरटेंसिव है। इसमें से बहुत सारे लोग जो है जिनको पता ही नहीं कि वो हाइपरटेंसिव है, और बहुत सारे लोगों में यहाँ पे ये भी आपको देखने मिलेगा कि उनको पता है पर वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करा रहे, और जो करा रहे हैं उनका कंट्रोल में नहीं है बीपी। तो इसी के कारण जो कम्युनिके कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स है, ये मेजर किलर है हमारे लिए। और इसका जो वेरिएशन है, ये इसका प्रिविलेंस, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल, ये अपने भारत के स्टेट्स में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट में अलग अलग तरह से होता है। तो अनइवन हो जाता है, इम्प्रॉपर है। ये कोई रेगुलर इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि ऐसा ही होगा। तो इसके कारण इसको मैनेज करना भी बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था कि एक इंडियन हाइपरटेंसिव इनिशिएटिव निकाला, कंट्रोल इनिशिएटिव, और जिसके अंदर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, WHO है, उसके बाद में अदर ऑर्गेनाइजेशन है, और इन्होंने मिलकर ये टारगेट रखा है कि 25% हमको इसको बाय 2025 इसको कम करना है। अब इस जैसे इन लोगों ने अपना इनिशिएटिव लिया है और ये अपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर और बाकी के लोगों जगह पे काम कर रहे हैं, वैसा ही उसाना हम उसाना की तरफ से काम कर रहे हैं ताकि लोगों तक हम लोग ये हाइपरटेंशन और की बात को फैलाया जाए और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में बताया जाए, और उनको ये समझाया जाए कि इसको मैनेज कैसे करना है। तो फ्रेंड, अब हम रियल टॉपिक पे आ रहे हैं कि ब्लड प्रेशर क्या है। तो ये ब्लड प्रेशर जो है, ये जो फोर्स एक्सर्ट बाय द सर्कुलेटिंग ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज। तो रक्त जब धमनियों में से दौड़ता है तो उनकी दीवारों पे जब वो अपना बल लगाता है, उसको हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। और ये ब्लड प्रेशर दो तरह का होता है, एक सिस्टोलिक होता है, एक डायस्टोलिक होता है। सिस्टोलिक तब होता है जब हार्ट धड़कता है, और डायस्टोलिक तब होता है जब हार्ट के बीच में आराम करता है, जब ब्लड रिसीव करता है हार्ट, तब डायस्टोलिक प्रेशर होता है। अब आप देखेंगे कि ये ब्लड प्रेशर रेगुलेट कैसे होता है। ये आपको इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि आपका जो मेडिसिनल ट्रीटमेंट है इसके ऊपर ये पूरा ये दो फैक्टर के ऊपर में रेस्ट करता है। एक तो कार्डियक आउटपुट, जो ब्लड प्रेशर है कार्डियक आउटपुट के ऊपर डिपेंडेंट करता है, और दूसरा पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस। ये दो चीजें हैं, और ये दो चीजों को ही डॉक्टर्स मैनेज करते हैं थ्रू मेडिसिन, और ये दो चीजों को ही हमको लाइफस्टाइल और सप्लीमेंट से मैनेज करना। तो आप देखेंगे कि कार्डियक आउटपुट क्या होता है कि ये एक मिनट के अंदर में कितना हमारा जो हार्ट है, इसको हम जैसे पंप कहते हैं, ये पंप कितना ब्लड पंप आउट करता है उसको कार्डियक आउटपुट कहते हैं। ये 5 से 6 लीटर होता है, और ये डिपेंड करता है कि हार्ट रेट, ये हार्ट हमारा किस रफ्तार से धड़क रहा है। तो ये जो रफ्तार होती है 60 से 100 बिट्स के बीच में होती है। कई लोगों को पता होगा कि हमारा हार्ट बीट 72 नॉर्मल बिट्स होते हैं, किसी के उससे ऊपर होंगे, किसी के उसके नीचे होंगे, बट दिस इज एन एवरेज हार्ट रेट यहाँ पे बताया है। इसके बाद में एक स्ट्रोक, जब एक हार्ट बीट होता है उस समय स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है वो होता है 50 से 100 ml। ना आप इसको जोड़ के कर लीजिए, अगर आपका हार्ट ज्यादा जोर से धड़क रहा है तो नेचुरली वो ज्यादा वॉल्यूम ब्लड बाहर भेज रहा है, तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। ठीक है। इसमें तीसरा फैक्टर होता है टोटल ब्लड वॉल्यूम। तो हमारे बॉडी में कम से कम 4.5 से 5.5 लीटर का ब्लड होता है। ये वेरिएशन होता है बिटवीन मेल एंड फीमेल में, फीमेल में कम होता है, मेल में ज्यादा होता है, सरफेस एरिया ज्यादा होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे आर्टरीज और वेन्स है, जो पूरे बॉडी में ब्लड तो पंप कर रहा है ये, बट खून जो दौड़ रहा है वो हमारे आर्टरीज में जा रहा है और वहां से पूरे शरीर में फैल रहा है। तो वो शरीर में जब कभी वासो कॉन्स्ट्रिक्शन या वासो डायलिटेशन होता है, या उसके बीच में कोई उसको हम लोग बोलेंगे कि ब्लॉकेजेस आते हैं,
उसमें उसको फ्लो को रिड्यूस करने के लिए कोई मैकेनिज्म क्रिएट हो जाता है, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, या कोई टर्बुलेंस उसमें आ जाता है, उसके कारण से रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो जब या तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ा है तो हमारा बीपी बढ़ेगा, या हमारा हार्ट रेट या स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा है तब हमारा बीपी बढ़ेगा। तो इसके कारण से इसके अंदर बैरो रिसेप्टर्स होते हैं। एज में क्या होता है कि ये बैरो रिसेप्टर, जब भी हार्ट हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो ये वेसल्स स्ट्रेच हो जाती है, और वेसल स्ट्रेच हो जाके बाद में हमको ब्रेन को मैसेज चला जाता है कि भाई ये ब्लड प्रेशर बढ़ा है, तो वहां से बैरो रिसेप्टर कंट्रोल करते हैं, वो हमारे हार्ट रेट को कम करते हैं और हमारे वेसल्स को डायलेट करते हैं। अब एज के साथ में आपका इसका क्या संबंध है कि जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है वैसे वैसे बीपी बढ़ते जाता है। और एज के कारण क्या होता है कि हमारा जो हमारी धमनियां है, जो आर्टरीज है, इसकी जो इलास्टिसिटी है वो कम हो जाती है। तो इलास्टिसिटी कम होने से वो, जैसे आप देखा होगा कि कभी आप नया अगर रबर का ट्यूब को भी लाएंगे तो उसमें जो स्ट्रेचेबिलिटी होगी, और उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में उसी रबर के ट्यूब को ज्यादा स्ट्रेच नहीं होगा, वो कड़क आ जाएगा। सो वो एक फैक्टर। फिर एक कुछ फैक्टर है जेनेटिक, जो हमारे हेरिडिटी को लेके है। फिर ये एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म है, इसके ऊपर लोग मतलब मेडिकल साइंस में ब्लड रेगुलेट करते हैं। और फिर एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, जिसका मैं आपको बताऊंगा कि लाइफस्टाइल और कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये वाला एक इम्पॉर्टेंट है कि इसके लिए ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स है। पहले तो लोग ये जो एंड्रॉयड है स्प्रिंग वाला यूज करते थे, ये मर्क्यूरी वाला है, अब ये डिजिटल आ गया है। और जहाँ पे हॉस्पिटल्स में जब जो ज्यादा लोगों का लेना होता है तो दिस इज अनदर। आपको ये भी पता होगा कि कोरोना काल में हम लोगों ने पल्स ऑक्सीमीटर बहुत यूज किया था, और पल्स ऑक्सीमीटर में हार्ट की कंडीशन, रेगुलर बीट के बारे में बताया जाता है, उसके बाद में पल्स के बारे में पता चलता है। ऐसे ही अभी कुछ वॉच आए हैं जहां पे आपको अपना ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक और पल्स रेट भी पता चल सकता है। बट उसकी रिलायबिलिटी कितनी है ये अभी टेस्ट होनी बाकी है, या उसको पता चलेगा कि टेक्नोलॉजी जितनी ज्यादा इम्प्रोवाइज होगी वो उतने ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग देंगे। अब क्यों गिनना है इसको? क्योंकि ये ब्लड प्रेशर हमारे हेल्थ, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ का और ओवरऑल वेलबींग का इंडिकेटर है। तो समग्र स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण संकेत है। इसको हमेशा गिनते मतलब काउंट करना चाहिए, इसको कैलकुलेट करते रहना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं कि जिन्होंने आज तक, मुझे लगता है कि कभी बीपी रेयरली मेजर किया होगा, या कभी कभार वो हॉस्पिटल चले जाते हैं तब वो मेजर हो जाता है। और ऐसे ही जब वो मेजर होता है तब उनको पता चल जाता है कि अरे अपना बीपी बढ़ चुका है। तो बहुत से बार जैसे आपने देखा होगा कि डायबिटीज के साथ ऐसा होता है कि शुगर पता ही नहीं चलती, और जब आप सडनली कभी कुछ ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल में लैंड अप हो जाते हैं तो डॉक्टर आपको ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर टेस्ट करता है और कहता है अरे आपकी शुगर बढ़ी है, इसको पहले कंट्रोल करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कोई सर्जरी कर पाएंगे। ऐसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ा है, इसको पहले कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो ये जो इसकी कैटेगरीज होती है, उच्च रक्तचाप होता है, सामान्य और निम्न। तो जिसको हम लोग नॉर्मल टेंशन बोलते हैं, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, और हाइपर टेंशन जो ज्यादा होता है, और हाइपोटेंशन जब ब्लड प्रेशर कम होता है। तो अब ये जो नॉर्मल हाइपरटेंशन है वो क्या होता है इसको समझ लीजिए। कि नॉर्मल, हम आपको पता होगा कि लोग हमेशा कहते हैं कि भाई नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होना चाहिए। तो ये ऐसा कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है, क्योंकि ये फिक्स कभी नहीं होता है। ये ब्लड प्रेशर एज, जेंडर, फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस लेवल, मेडिकेशंस और अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन के हिसाब से ये हमेशा कम ज्यादा होते रहता है। तो ये सारी चीजों का प्रभाव हमारे ब्लड प्रेशर पे पड़ता है। तो ब्लड प्रेशर हमेशा एक रेंज में होता है। जैसे कि मैंने कहा कि सिस्टोलिक 96 to 120 और 66 to 80 इसके बीच में होना चाहिए। अगर वो लो हो जाता है तो भी कोई डरने की बात नहीं है। अगर 90 to 95 भी रेंज में रहता है तो भी उसको लो कहते हैं। बट अगर वो हाई हो जाए तो जरूर सोचने की बात है। तो यहाँ पे आपको लगेगा कि यार यहाँ हाई नॉर्मल कहा गया है, अप टू 139 और अप टू 89 डायस्टोलिक भी नॉर्मल दिखा है। तो ये नॉर्मल तभी माना जाता है जब कोई आपको मॉर्बिडिटी नहीं है, कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं, ना कोई कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, डायबिटीज है या क्रॉनिक रेनल डिजीज है। अगर आपको ये क्रॉनिक रेनल डिजीज हो जाती है तब ये हाई नॉर्मल नहीं रहेगा, ये पहली स्टेज हो जाएगी ब्लड प्रेशर की। अब यहाँ पे हम ब्लड प्रेशर पे आते हैं कि जब कभी आप हॉस्पिटल में जाते हो तो सबसे पहले आपको जो
एंग्जाइटी हो जाती है, वो इस एंग्जाइटी के चलते आपका ब्लड प्रेशर ऐसे ही बढ़ जाता है। इसको हम लोग कहते हैं कि व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि आप हॉस्पिटल में गए और आप ब्लड प्रेशर आपका मेजर किया गया, पता चला वो तो बढ़ा हुआ है, और डॉक्टर ने कह दिया कि अरे आपको तो हाइपरटेंशन है, और चलो मैं दवाइयाँ लिख देता हूँ और आप कल से हाइपरटेंशन की दवाइयाँ लेना शुरू कर दीजिए। पर ये सही नहीं है। हाइपरटेंशन सस्टेन्ड एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर है कि जब तक कि दो से अधिक रीडिंग अगर आप लेते नहीं है अलग अलग जगह पर, और तब उसका जो एवरेज निकाल के आप औसत निकाल के उसको देखेंगे, तभी आप बोल सकते हैं कि आपको हाइपरटेंशन है या नहीं है। तो इसके लिए एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको 24 घंटे के लिए आपके पास लगा दिया जाता है, और ये आपका रात में और दिन में ब्लड प्रेशर काउंट करता है और उसका एवरेज निकालकर फिर बताया जाता है कि आपको हाइपरटेंशन है या नहीं है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मैं जो लोग हाइपरटेंशन की दवाई खा रहे हैं बिकॉज उनको लगता है कि उनको हाइपरटेंशन है, जबकि हो सकता है कि उनको हाइपरटेंशन नहीं हो, और वो होगा भी तो भी वो प्राइमरी और इसेंशियल हाइपरटेंशन होगा। ये दो गाइडलाइन है, एक अमेरिकन गाइडलाइन है, एक यूरोपियन गाइडलाइन है। तो अमेरिकन गाइडलाइन बहुत स्ट्रिंजेंट है, और वहां पे आप देख पा रहे होंगे कि एलिवेटेड और स्टेज 1 लेवल का जो है अप टू 139 टू 89 mm ऑफ ब्लड प्रेशर, ये इसको यूरोपियन गाइडलाइन में नॉर्मल माना गया है। बट ये अमेरिकन में फर्स्ट लेवल ऑफ बताया गया है, क्योंकि वहां पे इसके कारण से बहुत सारी डिजीज डेथ हो रही है, और उन्होंने इंडिकेशन दे दिया कि भाई अगर ब्लड प्रेशर है तो उसको इजी मत लो उसको, और अगर आपको कोमॉर्बिडिटी है तो बिल्कुल ही उसको ये लेवल पे पहुंचते ही आपको समझ जाना चाहिए कि मुझे इसकी तरफ ध्यान देना जरूरी है। अब देखिए कि आप प्राइमरी और इसेंशियल हाइपरटेंशन ये टाइप है, सेकेंडरी और प्राइमरी दो टाइप है। प्राइमरी हाइपरटेंशन 90 टू 90% लोगों में होता है। अब आप देखिए कि प्राइमरी हाइपरटेंशन अगर 90 टू 90% लोगों में होता है, तो इतने सारे लोग दवाई क्यों खा रहे हैं? दवाई खाने के लिए या एंड ऑर्गन डैमेज होने के लिए सेकेंडरी हाइपरटेंशन होना जरूरी है, और सेकेंडरी हाइपरटेंशन 5 से 10% लोगों में ही होता है। तो क्या आपका हाइपरटेंशन प्राइमरी है या सेकेंडरी है, ये पता करना जरूरी है। और प्राइमरी अगर हाइपरटेंशन आपका है तो उसको जेनेटिक फैक्टर, लाइफस्टाइल फैक्टर और एनवायरमेंटल फैक्टर, ये तीन ही फैक्टर मेजरली उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और अगर सेकेंडरी है तो किडनी डिजीज, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, ये जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो जाता है, और सर्टन मेडिकेशंस होते हैं जिसको लेने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, या नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स है, एंटी डिप्रेसेंट है, या तो जो रिक्रिएशन ड्रग जिसको कहते हैं कि कोकेन और एम्फेटामाइंस, ये लेने से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कुछ ऐसे फैक्टर है कि दोनों के लिए कॉमन है, जैसा एज और जेनेटिक फैक्टर, जिसके अंदर प्राइमरी में भी हो सकता है और सेकेंडरी में भी हो सकता है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी से, अनहेल्दी डाइट करने से ओबेसिटी बढ़ जाती है, डायबिटीज हो सकता है, और स्मोकिंग, अल्कोहल और क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से बाकी के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो आपको पहले चीज करना है कि मेरा कौन सा है, ये पता करना है, और ये आपको डॉक्टर बताएंगे। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर टेस्ट करेंगे, और उसके बाद वो आपको बता देंगे कि आपका प्राइमरी हाइपरटेंशन है या आपका सेकेंडरी हाइपरटेंशन है, क्योंकि दोनों का मैनेजमेंट अलग अलग है। अब इसके कारण क्या है, ये प्राइमरी हाइपरटेंशन में देखिए कि हाई इंटेक ऑफ सोडियम अगर कर रहे हैं, आप ले रहे हैं, तो सोडियम वासोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है, सोडियम वॉल्यूम को बढ़ाता है, ब्लड वॉल्यूम को, और वाटर रिटेंशन करता है, इसके कारण से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो हमको कहीं हम सोडियम ज्यादा, तो नमक ज्यादा तो नहीं खा रहे, ये हमको देखना है। क्या हम सैचुरेटेड फैट ले रहे हैं? ये सैचुरेटेड फैट अगर आपके पास में होगा तो आपको एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा, आपके वेसल्स के अंदर में रेजिस्टेंस आएगा, वेसल्स नैरो हो जाएंगी, वहां से खून जो जो रफ्तार से जाना चाहिए वो जा नहीं पाएगा, जितने मात्रा में जाना चाहिए उतना नहीं जाएगा, और आपको ब्लड प्रेशर हो जाएगा। उसके बाद में जितने आप प्रोसेस फूड लोगे उसमें भी जो सॉल्ट का कंजम्पशन ज्यादा हो जाता है, एंड फैट जो होता है, हाइड्रोजनेटेड फैट्स का कंजम्पशन उसमें बढ़ जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है, वो ब्लड प्रेशर के रिस्पॉन्सिबल है। फिजिकल एक्टिविटी अगर आप नहीं करते, सेडेंटरी लाइफस्टाइल आपके पास में होती है, तो आपका वेट गेन होता है, ओबेसिटी बढ़ती है, और उसके कारण से बाकी के प्रॉब्लम आते हैं। क्रॉनिक स्ट्रेस होने के कारण भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो अब ये वाले, इसके साथ में अल्कोहल और स्मोकिंग कंजम्पशन,
अब स्मोकिंग में एक और चीज मैं आपको बता दूं कि स्मोकिंग जो करते हैं उनका ही ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता, उनके ही वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होते। जो लोग पैसिव स्मोकिंग करते हैं उनमें भी ये देखा गया है कि उनका भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो ना तो स्मोकिंग करें ना पैसिव स्मोकिंग करें। तो फिर अल्कोहल कंजम्पशन आपका लिमिटेड रहना चाहिए। ऐसा देखा गया है कि एक्सेस अल्कोहल कंजम्पशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन द हाइपरटेंशन। उसके बाद में जेनेटिक है और एज है, ये मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद में अदर हेल्थ कंडीशंस है, डायबिटीज, किडनी डिजीज और स्लीप एपनिया। ये बीमारी जैसे आपको अगर मधुमेह हो गया है, गुर्दे की बीमारी, या आपकी नींद में आपको स्लीप एपनिया हो जाता है, आपकी नींद ठीक से, आप ब्रीदिंग ठीक से नहीं कर पाते हैं, बीच में ही वो रुक जाती है, तो ये वो कंडीशन भी हाइपरटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और दूसरा ये है व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, जो मैंने आपको बताया कि इमीडिएटली हॉस्पिटल में जाने के कारण होता है। अब इसके जो लक्षण है वो लक्षण 90 to 95 केसेस में कोई लक्षण नहीं होते, इसीलिए पता नहीं चलता। और जो 5 to 10 केसेस है जहां की हो सकता है प्राइमरी कॉज या सेकेंडरी कॉज हाइपरटेंशन होगा, उसी में लक्षण दिखेंगे। तो सिर दर्द होना, चक्कर आना, नौशिया वॉमिटिंग होना, कंफ्यूजन या विजुअल डिस्टर्बेंसेस, सांस की कमी, छाती में डिस्कम्फर्ट फील होना, या तो फटीग आना। अब ये जो लक्षण है ना, ये कई बार बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन भी होते हैं, और कई बार ये लक्षण आपको दिखेगा कि जो मेडिसिन आप ले रहे हैं उनके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो ये इसको आपको समझना, डॉक्टर से समझा लेना बहुत जरूरी है। अब जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपका ब्लड प्रेशर वो मेजर करते हैं। उसके बाद आपकी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, जिसकी हेरिडिटी हिस्ट्री है या साइन एंड सिम्टम, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। कहीं आपके स्वेलिंग तो नहीं आया, कहीं आपके एडिमा तो नहीं है, कहीं आपके वस्कुलर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सारी चीजें चेक करने के बाद में वो आपको कुछ टेस्ट बताएंगे, जैसे कि कंप्लीट ब्लड काउंट करना है, जिसके बाद इलेक्ट्रोलाइट आपको पता चलना चाहिए, सोडियम कितने, पोटेशियम कितने, कैल्शियम का लेवल क्या है। उसके बाद आपका ब्लड ग्लूकोज फास्टिंग पोस्ट मील क्या है। HbA1c जो होता है ये आपका एवरेज बताता है 3 महीने के अंदर में, पास्ट 3 मंथ के अंदर में क्या आपका ब्लड शुगर लेवल रहा है। अब ब्लड शुगर लेवल अगर हाई है तो डायबिटीज होगा, डायबिटीज से जो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हो गए, डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, और ये सारी चीजें डायबिटीज से होती है। और कार्डियोपैथी भी होती है इसी से। अब लिपिड प्रोफाइल है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, इसको गिनना जरूरी है ताकि आपको एथेरोस्क्लेरोसिस है या नहीं है ये आपको पता चल सकता है। फिर किडनी आपकी फंक्शन कर रही है नहीं कर रही है, आपका यूरिन आउटपुट प्रॉपर हो रहा है नहीं हो रहा है, ये क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिन नाइट्रोजन बताएगा। उसके बाद में जब बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो रेनिन एंजियो अल्डोस्टेरोन का लेवल का रेशो को मेजर किया जाता है। और उसके बाद में थायराइड फंक्शन है। अब ये देखा गया है कि कई लोगों को पता है कि हाइपोथायराइडिज्म में हम लोग T3 T4 TSH देखते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि जो हाइपरथायराइडिज्म कंडीशन है जो कि ब्लड प्रेशर को कॉज करती है, सेकेंडरी कॉज उसका जो हाइपरथायराइडिज्म है। कई बार अगर किडनी प्रॉब्लम आपको है तो यूरिन में आपको अल्बुमिन जाएगा, तो यूरिन टेस्ट करनी चाहिए कि कहीं हमारे एल्बुमिन या पस सेल, हमारे ब्लड सेल तो कहीं हमारे यूरिन में है या नहीं, वो पता चलता है। फिर इकोकार्डियम ईसीजी किया जाता है, और इकोकार्डियो किया जाता है जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी और अदर कार्डियक डिसऑर्डर, इरेगुलर हार्ट बीट को डिटेक्ट करता है। और रेडियोलॉजी में हार्ट का सिटी एंजियोग्राफी किया जाता है, किडनी की अल्ट्रासाउंड और सिटी की जाती है। ये सारे टेस्ट करके डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपको प्राइमरी हाइपरटेंशन है या आपको ऑलरेडी कोई सेकेंडरी हाइपरटेंशन, या आपके एंड ऑर्गन जो है वो डैमेज हो चुके हैं और उसके वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। और उसी के ऊपर आपका बीपी का मैनेजमेंट डिपेंड करेगा। मैंने ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोग जो बीपी की गोली खाते हैं, वो अगर ये सारे टेस्ट करें और उनको पता चल जाए कि मेरा तो प्राइमरी हाइपरटेंशन है, बहुत से लोगों में दवाई लेने की जरूरत नहीं है, वो लाइफस्टाइल और सप्लीमेंट को लेके अपना बीपी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बहुत सारे केसेस मेरे अपने फैमिली में है और अपने मेरे परिचित में लोगों में है कि जो जो सिर्फ लाइफस्टाइल और सप्लीमेंट के भरोसे अपने बीपी को कंट्रोल करके रखे हैं और उनको कोई भी प्रॉब्लम्स अभी तक हुआ नहीं है। एंड दैट इज व्हाट। अब यहाँ देखिए कि अगर ये क्रॉनिक हो जाता है बीपी तो क्या प्रॉब्लम होता है। क्रॉनिक बीपी दिल की कोरोनरी आर्टरीज को अफेक्ट करता है, हार्ट अटैक क्रॉस कर सकता है, और हार्ट फेल्योर, जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाती है उससे हार्ट फेल्योर भी हो जाता है। ये स्ट्रोक
अगर अगर कहीं आपके ब्लड प्रेशर से आपकी जो कैपिलरीज है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, तो वो ब्रेक डाउन होने से आपके जो ब्रेन के अंदर में जो है इंटरनल जो कैरोटिड आर्टरीज होती है, वो सेरेब्रल हेमरेज जो इसको कहा जाता है, वहां पे वो हो सकता है। और उसी के साथ में अगर आपको चक्कर आ रहे हैं या डिमेंशिया हो रहा है, आपका ब्लड, आपका ब्रेन इतना इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा है, स्मृति आपके भ्रंश हो रहा है, तो ये सारी प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है। किडनी की बीमारी हो जाएगी, किडनी क्रॉनिक किडनी डिसऑर्डर हो जाएगा और किडनी फेलियर भी हो सकता है। रेटिनोपैथी आपको पता होगा कि कई लोगों को हाइपरटेंशन से उनका रेटिना डिटैच हो जाता है, इसके कारण से वो देख नहीं पाते हैं और विजन लॉस हो जाती है उनको। फिर एथेरोस्क्लेरोसिस और पेरिफेरल आर्टरी डिजीज ये कॉज होता। और इम्पॉर्टेंट जो है कि सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग हो जाना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड रिड्यूस लिबिडो, ये वाला भी एक जो लॉन्ग टर्म ब्लड प्रेशर के वजह से होने वाला कॉम्प्लिकेशंस है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए नॉर्मल आर्टरी है और यहाँ पे ये एथेरोस्क्लेरोसिस से प्लग फॉर्म हो गया है, तो इसका जो डायमीटर है और इसके डायमीटर में अंतर आ गया है, तो नेचुरली यहाँ से जो नॉर्मल ब्लड फ्लो हो पाएगा, यहाँ से वो ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखिए हार्ट के अंदर में ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर के वजह से बढ़ गया है, इसके वॉल थिन हो गए और इसी के बाद वजह से यहाँ पे हार्ट फेलियर होने के चांसेस बढ़ गए। ब्रेन के अंदर मैंने बताया है कि आपको सेरेब्रल हेमरेज हो सकता है, उस प्रॉब्लम। उसके बाद में आई में रेटिना डिटैच और किडनी के अंदर क्रॉनिक फेलियर बिकॉज ऑफ दिस हो सकता है। तो अब ये सारी जटिल समस्याओं को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या सॉल्यूशन है? हमारा गोल ऑफ ट्रीटमेंट जो है, ये दो तरह से, ये मतलब दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। जो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आपको पता होगा कि ये प्रिवेंट करता है, ये रिवर्स करता है चीजों को और डिले करता है कॉम्प्लिकेशन। और एक जो अच्छा जीवन जीने का है हमको, एक डिजीज फ्री मतलब कॉम्प्लिकेशन फ्री या लाइफ जिसको कहते हैं रिस्क फ्री लाइफ जो जीना है, वो हमारे लिए गोल होना चाहिए ट्रीटमेंट का। और ये इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हैप्पी लाइफस्टाइल। आप देखेंगे कि हैप्पी लाइफस्टाइल ब्लड प्रेशर को कैसे मैनेज करने के लिए हेल्प करता है, पर्टिकुलरली जो प्राइमरी कॉज से होने वाला प्राइमरी हाइपरटेंशन। जो भी डाइट है इसको आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन लेने हैं, लीन प्रोटीन लेना है, जो रेड मीट है वो उसको अवॉइड करना है, लो सोडियम इंटेक होना चाहिए, प्रोसेस फूड नहीं लेना है आपको। और इसके साथ में आपको देखना है कि पोटेशियम, मैग्नीशियम ये आपके फूड में आना चाहिए। पोटेशियम जो होता है, ये जो जो सब्सटेंस जो सोर्सेस से आपको पोटेशियम मिलता है, वो पोटेशियम केले से जो बनाना खाते हैं लोग कहते हैं कि मैग्नीशियम जो होता है ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मिलता है आपको, बहुत से सारे सोर्सेस है, ये आप सभी को पता होंगे। उन सोर्सेस से जब आप ये चीजों को लेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। जहां आपको लगता है कि नहीं ये मैंने खाने में तो मैं खा तो रहा हूँ, बट मेरा रेगुलर हर चीज को पॉसिबल नहीं होता है, वहां आपको इसको सप्लीमेंट के थ्रू लेने में आपको हेल्प मिलेगी। जो एंटी हाइपरटेंसिव के लिए यहाँ पे एक डाइट कहा जाता है जिसको डैश डाइट कहते हैं, और ये डाइट के अंदर देखिए कि ये रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी दिया है, और ये अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हर बड़े हेल्थ रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन बताते हैं कि आपको वेजिटेबल, फ्रूट्स, होल ग्रेन, फैट फ्री, लो फैट डाइट की डेयरी, फिश, पोल्ट्री, बीन्स, नट, सीड्स और वेजिटेबल ऑयल लेना है। और ये वाला जो है रेड मीट और जो फैट हाई फैट डेयरी है, स्वीटनर्स, बीवरेजेस जो है, उसके बाद में स्वीट्स और सोडियम इंटेक को कम कर। सो ये डैश डाइट से भी आप अपना ब्लड प्रेशर को मैनेज कर सकते हैं, पर्टिकुलरली प्राइमरी जो इसेंशियल हाइपरटेंशन है। दूसरा लेवल पे हम लोग आते हैं एक्सरसाइज। जो एरोबिक एक्सरसाइज है, वॉकिंग, स्विमिंग और साइकिलिंग जैसे एक्सरसाइज आपको मिनिमम 30 मिनट्स करना चाहिए पर डे। तो ये करने से आपका सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। आपके जैसे जैसे आपको एक पता होगा कि लोग कहते हैं कि मैं हमेशा इसका एग्जांपल देता हूँ कि जब आप गाड़ी में एक नया टायर लगाते हैं, रबर का टायर लगाते हैं और उस गाड़ी को चलाते हैं, तो टायर का लाइफ ज्यादा बढ़ता है। बट उसी गाड़ी को अगर आप खड़ी कर देंगे, उस टायर का लाइफ कम हो जाता है और वो उसके बाद में कम जल्दी घिस जाता है और वो ज्यादा इफेक्टिव लॉन्ग रन नहीं देता है। तो ये वाला मेजर रीजन है कि जो एक्सरसाइज करने से सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, हमारे बॉडी के हर एंड ऑर्गन तक
न्यूट्रिशनल सप्लाई हो जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई होता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट वहां जमा होता है, टॉक्सिक एलिमेंट जमा होते हैं, वो फिल्ट्रेशन के लिए किडनी और लिवर की तरफ आते हैं। तो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी जरूरी है हमारे मसल को स्ट्रेंथन रखने के लिए। अब स्ट्रेस मैनेजमेंट तीसरा जो एरिया है जिसको हम लोग करना चाहिए, कि ये हमको रिलैक्स करता है। मैं हमेशा 3 चीजों के ऊपर देता हूँ, एक न्यूट्रिशन है, एक एक्टिविटी और तीसरा रिलैक्सेशन। तो न्यूट्रिशन जो है, ये हमको क्या खाना चाहिए ये जरूरी पता होना चाहिए, ना कि सब क्या खाना चाहिए जरूरी, जितना इंपॉर्टेंट है उतना क्या खा रहे हैं, क्या कब खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, किसके साथ खा रहे हैं, ये सारे चीजें भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो एक्टिविटी, तो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, ये जितनी इंपॉर्टेंट है, वो एक्टिविटी क्या कर कितना करे, इसका एक फॉर्मूला है जिसको हम फिट फॉर्मूला बोलते हैं। उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी इंटेंसिटी, उसका टाइम और उसका ड्यूरेशन जो ये है, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो चीज है रिलैक्सेशन, हम लोग रिलैक्सेशन करने के लिए यूजुअली आजकल जो आप देख रहे होंगे यंग जनरेशन, या तो फूड को रिसोर्ट करता है, या स्टिमुलेंट की तरफ जाता है, या ऐसे चीजें देखता है कि जो रिलैक्सेशन देने के बजाय एंटरटेनमेंट जो स्ट्रेस क्रिएट करता है। तो इससे बेस्ट रिलैक्सेशन के मेथड है योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन। इसके तरफ आपको करना चाहिए। सांसों के ऊपर प्राणायाम करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, योगा करना, ताई ची जैसी रिलैक्सेशन टेक्निक यूज करनी चाहिए। योग निद्रा, हम लोग कहते हैं योग निद्रा में प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन टेक्निक से आप अपने ब्लड प्रेशर को रिड्यूस कर सकते हो। अब इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारे बॉडी में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होती है। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक 2 चीजें होती है। सिंपैथेटिक जब हम लोग स्ट्रेस में होते हैं तब हार्ट रेट को बढ़ाती है और मसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करती है, जिससे कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। जो पैरासिम्पैथेटिक है वो जब स्टिमुलेट हो जाती है, जब हम लोग ये सारी एक्सरसाइजेस करते हैं, रिलैक्सेशन करते हैं, वो हमारे हार्ट रेट को कम करती है और वेसल्स को डायलेट करती है, कि जिससे कि हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, या हमारा ब्लड प्रेशर जो बढ़ा हुआ है वो रिड्यूस हो जाता है, नॉर्मल आ जाता है। तो ये सारी चीजें को स्ट्रेस मैनेजमेंट में लेते हैं। उसके बाद हमने माइंडफुल मेडिटेशन के बारे में आपको कहा, बता दिया है। दूसरा ये ग्रेटिट्यूड और पॉजिटिव थिंकिंग, ये हमको अपने प्रैक्टिस करनी है। हम हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए कि भगवान ने या जो भी परमात्मा है, जो सुपर पावर है, उसने हमको इतनी सारी चीजें दी है। मतलब हमारी एक तो बॉडी भी ऐसी बना के दी है कि जो खुद हर चीज का सोल्यूशन ढूंढने के लिए सक्षम है। मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, कोई भी चीजें अगर बॉडी में कुछ कम ज्यादा हो जाती है, तो बॉडी में ऐसे मैकेनिज्म है कि जो खुद अपने आप मैनेज कर लेती है। अब उसके अंदर में अगर हम लोग सपोर्ट करें स्ट्रेस कम देने का और न्यूट्रिशन, एक्टिविटी एंड रिलैक्सेशन का, तो हम लोग मैनेज कर सकते हैं स्ट्रेस को। ग्रैटिट्यूड जो है, हमको शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम लोग, हमारे साथ में जो सोशल सपोर्ट नेटवर्क है, हमारे घर के लोग हैं, हमारे मित्र परिवार है, हमारे वर्क प्लेस के लोग हैं, हमारे सोसाइटी के लोग हैं, ये सारे लोग हमारे लिए कहीं ना कहीं एक रिलैक्सेशन का या सपोर्ट का मीडियम बनते हैं। तो हमारे डॉक्टर्स है, हमारे कोच है, हमारे काउंसलर है, तो हमें जब भी प्रॉब्लम होता है तो इन लोगों के पास जाना चाहिए, ना कि अपने आप से कुछ भी मतलब इंटरनेट पे जाके सिम्टम देखना और उसके अंदर में सजेस्ट की हुई मेडिसिन को लेना, ये नहीं करना चाहिए, जिससे कि प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये वाला ग्रेटिट्यूड और पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच होनी चाहिए। जब भी आप निगेटिव थिंक करोगे तो आपको प्रॉब्लम्स हो जाएंगे और आपके प्रॉब्लम बढ़ जाएंगे, या आपको डिप्रेशन, एंजाइटी होगा। फिर ये एंजाइटी, डिप्रेशन भी हार्ट प्रेशर को, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए काम आएगा। उसके बाद में स्लीप। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोग सोते तो है, बट ऐसे देखा गया है कि आजकल यंग जनरेशन को पूछिए आप कि उनका सोने का टाइम क्या है। वो बहुत लेट सोते हैं और लेट उठते हैं। अगर उनको वर्किंग करना है मॉर्निंग में, जिसको काम पे जाना है, सोते तो लेट है पर उनको उठना जल्दी पड़ता है, तब उनकी नींद पूरी नहीं होती। तो नींद के बारे में ऐसे कहा जाता है कि 7 से 9 घंटे की नींद होनी चाहिए, ये ड्यूरेशन है। दूसरा ये है कि क्वांटिटी और क्वालिटी। तो दूसरा जो चीज है वो है क्वांटिटी, तो क्वालिटी। तो क्वालिटी स्लीप अगर नहीं है, तो आप अगर 7 8 9 घंटे भी सो लिए, तभी भी वो आपको बेनिफिट नहीं देगा। तो आपको ध्यान देना है कि आपकी जो नींद है, वो जितनी ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा ज्यादा
उसका गुणवत्ता या उसकी क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। तो यू शुड हैव अ गुड क्वालिटी स्लीप, और क्वालिटी स्लीप करने के लिए जो जो मैकेनिज्म और मेजर्स जरूरी है वो सब आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो लोग कहते हैं कि भाई कि इवनिंग टाइम में जब आप होगा कि खाना खाने के बाद में 3 घंटे पहले आपको खाना खाना है, खाना खाने के जो इवनिंग टाइम में आपको कैफीन नहीं पीना है, कॉफी नहीं पीना है। उसके बाद में आपको ये भी बताया गया होगा कि आपका डिजिटल एक्सपोजर जो है, जो आपके लैपटॉप है, मोबाइल है, ये टीवी है, ये सारे चीजों का एक्सपोजर आपको नींद को क्वालिटी स्लीप आने के लिए प्रिवेंट करता है। तो और जो आपके थॉट्स है, वो थॉट्स आपको प्रिवेंट करते हैं। तो ये सारी चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए। फिर सोशल सपोर्ट के बारे में मैंने आपको बताया है कि ये जरूरी है, और काउंसलिंग एंड कोचिंग और वेलनेस सपोर्ट जहां भी जरूरी लगता है लीजिए। कोई ब्लड प्रेशर होना ये कोई ऐसी बीमारी नहीं कि जिसके लिए आपको शर्म आए। ये बहुत कॉमन बीमारी है। मैंने जैसे आपको बताया कि वर्ल्ड में 60 to 70% लोगों को ये प्रॉब्लम्स है। तो इसकी हेल्प लीजिए। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको ये लास्ट बताऊंगा कि ये जो सप्लीमेंट को लेके जो रिसर्च हुआ है वो क्या है। यहाँ पे देखिए, मैंने हर तरह से इसको फाइंड आउट किया है। अलग अलग टेस्ट जो रिसर्च हुए हैं उनका डेटा कलेक्ट किया है। यहाँ पे एक डेटा में 14 सप्लीमेंट के बारे में बात किया है। यहाँ जो दूसरा डेटा है इसके बाद 10 सप्लीमेंट के बारे में। और आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो है, ये जो मेडिकली रिव्यूड है, या तो ये जो एंजिला मैम है, रैन मैम है, इन्होंने ये लिखा है। उसके बाद में इसको फार्मा डी जो फार्माकोलॉजी के एक्सपर्ट है उन्होंने रिव्यू किया है, उसके बाद ही इन्होंने ये पब्लिश किया है। उसके बाद में फोर्ब्स, जानते होंगे आप, फोर्ब्स एक हेल्थ रिलेटेड न्यूज देता है। ये जब भी कोई चीज यहाँ पे लिखते हैं तो इसको मेडिकली रिव्यूड किया जाता है और उसके बाद ही ये पब्लिश किया जाता है ऑनलाइन। तो यहाँ पे इन्होंने 5 सप्लीमेंट्स के बारे में कहा। तो फ्रेंड्स, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करने के लिए अब आपके पास दो तरीके हैं। अगर आपका इसेंशियल और प्राइमरी हाइपरटेंशन है तो आप उसको अपने लाइफस्टाइल और सप्लीमेंट से मैनेज कर सकते हैं। लाइफस्टाइल के लिए बैलेंस डाइट लेना, फिजिकल एक्टिविटी रेगुलर करना, क्वालिटी स्लीप लेना, हेल्दी वेट मेंटेन करना, स्ट्रेस को कम करना, अल्कोहल और स्मोकिंग को अवॉइड करना, ये जितना जरूरी है उतना ही जो सप्लीमेंट्स है यहाँ पे। देखिए, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी, फिर कोएंजाइम Q10, फिश ऑयल जो ओमेगा 3 देता है, जो मेलानिन जो है, जो हमको अच्छी क्वालिटी नींद आने से आता है, अर्जिनिन जो हमारा अमाइनो एसिड है, बीटरूट है, और जिंजर है, गार्लिक है, प्रोबायोटिक्स है, और ग्रीन टी। इतने सारे सप्लीमेंट्स जो है वो आपको कहीं ना कहीं आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलराइज करने के लिए हेल्प करते हैं। अब आप मैं आपको ये भी बता दूं कि यूसाना जो है, यूसाना ने कई तरह के ऐसे प्रोडक्ट बनाए हैं जो प्रोडक्ट के अंदर में इन सप्लीमेंट्स को डाला गया है। जो लोग अगर नॉर्मली फूड जो लेते हैं उसमें से कहीं उनको उतना क्वांटिटी में सप्लीमेंट नहीं मिल रहा है या कम मिल रहा है, तो उसको उनको सप्लीमेंट के थ्रू लेना है। अब आप कहेंगे कि हम तो नॉर्मल डाइट लेते हैं, हमको पता है, वेजिटेबल भी खाते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं। तो आपको मैं कुछ रिसर्च बताना चाहूंगा कि जहां पे उन्होंने कहा कि जब तक कि एक सफिशिएंट क्वांटिटी में ये नहीं आता तब तक इसका इफेक्ट होता नहीं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे ये बायोमेगा करके एक प्रोडक्ट है हमारा, जिसके अंदर में ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है वो होता है। अब ये जर्नल ऑफ अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने रिसर्च करके बताया है कि ये ओमेगा फैटी एसिड का जो परसेंटेज है वो 2 ग्राम्स टू 3 ग्राम्स होना चाहिए डोजेस में। अब ये अगर रिकमेंडेड है कि 3 ग्राम्स एंड पर डे के ऊपर अगर होगा तो इसका इफेक्ट लोअरिंग ऑफ बीपी के लिए होता है, और ये ऐसा स्टडी में पाया गया। अगर आप ले भी रहे हैं, हो सकता है कि आप ओमेगा 3 फैटी एसिड यूजुअली जो फिश ऑयल के थ्रू मिलता है। कई लोग होंगे जो वेगन होंगे कि जिन्होंने कहा हो कि भाई हमारे हमको तो फिश नहीं खाते, तो उनके लिए फ्लैक्स सीड है, चिया सीड्स है, वहां से मिलता है। फिर जो अलगीज होते हैं उसके थ्रू, सी अलगी से उसके मिलता है। पर कहीं इनको होगा कि ये तो अवेलेबल नहीं है, हम नहीं खा सकते, तो उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है कि उन्होंने ओमेगा 3 फैटी एसिड लेना चाहिए, वो फिश ऑयल से मिलता है। उसके बाद मैकल डी जो दूसरा एक जो प्रोडक्ट है जिसके अंदर मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन डी है, और ये जो है इसमें आप मैग्नीशियम का एल्सेवियर जो एक अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन है, ये बताता है कि मैग्नीशियम के सप्लीमेंट लेने से ये देखा गया है रिजल्ट इन मीन रिडक्शन ऑफ
4.18 mm of Hg in systemic blood pressure, the systolic, और 2.27% ऑफ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हुआ है. सो ये स्टडीज जो है, ये जो मैग्नीशियम क्या करता है, वेसल के एंडोथेलियल फंक्शनिंग को इंप्रूव करता है, डायलिटेशन करता है, और जो कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है, बढ़े हुए कैल्शियम को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, मॉनिटर करता है. तो उसके बाद कैल्शियम जो है ये एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स फंक्शन को और हार्मोनल इम्बैलेंस को रेगुलराइज करता है. और ये भी है, हाइपरटेंशन की स्टडी में देखा गया है कि ब्लड प्रेशर कैल्शियम लेने से ब्लड प्रेशर लोअर होता है. इसका इफेक्ट पर्टिकुलरली ऐसा भी देखा गया है कि यंग जनरेशन में इसका इफेक्ट नहीं होता है, बट जो ओल्ड एज पीपल है, जो 50 के ऊपर के लोग हैं, इनमें इसका इफेक्ट ज्यादा देखा गया है कि उनमें इस ये जो लेस देन जो 35 और ये लोग जो है 35 ईयर्स ओल्डर है, इनके अंदर में इसका इफेक्ट ज्यादा देखा गया. जब विटामिन डी के ऊपर आ गए, ये रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टीन को रेगुलेट करता है. अभी अभी मैं जब आपको बताऊंगा कि मेडिकल मैनेजमेंट में एस इनिबिटर होता है, वो एस इनिबिटर यही चीज रेनिन एंजियोटेंसिन के उसको कहते हैं कि जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है, उसको ब्लॉक करता है ताकि वो एंजियोटेंसिन से एंजियोटेंसिन 2 ना बनने दे, और वो चीज वर्क करती है ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में. तो यहाँ पे विटामिन डी के जो स्टडी किया गया, ये 50 ईयर्स एंड अबाउ लोगों को में पाया गया कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक को कम कर. फिर आपने देखा गया कि हमारे यहाँ पे एक और प्रोडक्ट है जिसको हम लोग एसेंशियल बोलते हैं. दिस इज अ यूनिक प्रोडक्ट विच इज अ गुड ब्लेंड ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, और इसके अंदर अदर न्यूट्रिएंट्स भी डाले गए हैं. यहाँ देखिए कि विटामिन बी जो B12 जो है, ये हिमोसिस्टिन लेवल को रिड्यूस करता है और इनडायरेक्टली ब्लड प्रेशर को कम करने में. विटामिन B12 जो है, ये पर्टिकुलरली ऑल द जो हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म होने के लिए जो चीजें जरूरी है, उनके लिए प्रिकर्सर है, उनके शुरू के लिए रिक्वायर्ड होते हैं. उसके बाद विटामिन सी, इसमें आपको जरूर बताना चाहूंगा कि विटामिन सी नॉट ओनली एंटीऑक्सीडेंट है, बट ये रिड्यूस आर्टेरियल स्टिफनेस को कम करता है. विटामिन सी जो होता है, उसके अंदर कोलेजन फाइबर्स, कोलेजन जो होता है हमारा, उसके ऊपर वर्क करता है. तो जो वेस्कुलर स्टिफनेस आ जाता है, जो इलास्टिसिटी लॉस हो जाती है, दैट कैन बी करेक्टेड बाय विटामिन सी. विटामिन डी ई जो है, वो भी एंटी हाइपर इंफ्लामेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट है. ये नाइट्रस ऑक्साइड को स्टिमुलेट करता है, प्रोड्यूस करता है बॉडी में, जिसके कारण वेसोडाइलेशन होता है और ब्लड प्रेशर कम. कुरकुमिन आपको पता होगा, जो हल्दी होती है, हल्दी के अंदर का इंग्रेडिएंट है. हल्दी एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लामेटरी होती है, साथ ही साथ ये ब्लड वेसल डायलेट भी करती है और ब्लड प्रेशर रेगुलेट. हिस्पेरिडीन करके एक ब्लड होता है कि ये पर्टिकुलरली ऐसा देखा गया है कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए ये काम करता है. साथ ही साथ एक माइल्ड डायूरेटिक का भी काम करता है. जब आप इसको लेंगे तो आपको डायूरेसिस होगा, तो जो मेडिकल मैनेजमेंट में डॉक्टर्स डायूरेटिक प्रिस्क्राइब करते हैं, वो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो ये वाला ये यहाँ पे कोरिसेंशियल. देन दे रेसवरट्रॉल जो है, ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट है. ये जो है, ये भी मेडिकल वासो डायलिटेशन कॉज करता है. उसके साथ साथ ये वाला जो सब्सटेंस है, ये मूड को भी बहुत अच्छे से मैनेज करता है. नॉट ओनली इट हेल्प इन मैनेजिंग द आपका ब्लड प्रेशर, इट ऑल्सो हेल्प इन मैनेजिंग. उसके बाद में ग्रेट सिल्प एक्सट्रैक्ट जो है, हमारे यहाँ पे एक अनदर है प्रोफाविनॉल जो करके आता है. विटामिन सी और विटामिन ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट जो लेते हैं, वो वहाँ पे जो उसके अंदर में भी ये देखिए कि इसके अंदर जो इनिबिट एंजियोटेंसिन 2 जो बनने वाला है, उसको प्रिवेंट करता है ये, और माइल्ड डायरेटिक करके काम. इसके ऊपर जो स्टडी किया था, उसको अंदर में ब्लड प्रेशर और परस्यूड स्ट्रेस, ये भी स्टडी जो किया गया है, ये स्टडी भी बताता है कि ब्लड प्रेशर नॉट ओनली मैनेज किया, उन्होंने स्ट्रेस को भी मैनेज करने में ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट हेल्प करता है. उसके बाद कोएंजाइम 10, ये एंटीऑक्सीडेंट है. ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाता है. एंड इसका जो स्टडी किया गया है, इसके अंदर में मेटाबॉलिक डिजीज के अंदर में देखा गया है कि ये ब्लड प्रेशर को कम करने में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है. और मैं जो भी स्टडी आपको बता रहा हूँ, ये कोई एक या दो स्टडी नहीं है, ये बहुत सारे मेटा एनालिसिस है. मेटा एनालिसिस, सिस्टेमिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस वो होता है कि जो बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी ट्रायल और स्टडीज कर चुके, कुछ साइंटिस्ट जो होते हैं, उन सारे स्टडीज को कंपाइल करके उसको एनालाइज करते हैं, और उसमें से क्या फाइंडिंग आते हैं, वो यहाँ पे प्रेजेंट किया है.
तो उसके बाद में आपको देखिए ये जो है कि जो कोएंजाइम 10 के बारे में अनदर रिसर्च जो दिखा गया है कि ये भी ब्लड प्रेशर के ऊपर में और कार्डियो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के ऊपर में भी ये इफेक्टिव होता है। अल्फा लाइपोलिक एसिड एक जो कंटेंट है हमारे अंदर मेडिसिन सप्लीमेंट्स के अंदर में, ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटीऑक्सीडेंट करके काम करता है। ये भी नाइट्रस ऑक्साइड को बढ़ाता है। उसके साथ साथ ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को इम्प्रोवाइज करता है। अल्फा लाइपोलिक एसिड पर्टिकुलरली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में जो एटीपीज फॉर्मेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसके ऊपर जो रिसर्च हुआ है, ये रिसर्च में भी देखा गया है कि सजेस्ट द स्टडी कि ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को सिग्निफिकेंटली कम करता है। उसके अलावा अर्जिनिन, बीटरूट, गार्लिक और मेलाटोनिन, ये सारे दूसरे जो बायो इंग्रेडिएंट है जिसको आप अपने गार्लिक खाना चाहिए, लहसुन खाना चाहिए, बीटरूट जो जूस है वो लेना चाहिए, मेलाटोनिन स्लीप नींद अच्छी लेनी चाहिए। ये सारे करने से आपको बेनिफिट होगा प्राइमरी हाइपरटेंशन में। अब जहां पे ऐसा लगता है कि आप डॉक्टर के पास जाते हो और वो आपको ये सारी दवाइयां लिख देते हैं, तो हम इसके पर बात नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज नहीं है, या फिर आपके जो फिजिशियंस है उनको ही ये एक्सपर्टाइज एरिया है, उनसे ही जाके आप कंसल्ट कीजिए। ये सारे मेडिसिन जब भी आप डॉक्टर के पास जाओगे, उनका कहना होता है कि इसको लाइफ लॉन्ग आपको हाइपरटेंसिव ड्रग लेने हैं। ये डिपेंडेंसी क्रिएट करते हैं, ये बहुत सी बार साइड इफेक्ट करते हैं और ये इकोनॉमिक बर्डन क्रिएट करते हैं, बिकॉज ये जो मेडिसिन है इसके साइड इफेक्ट से और भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बट हम लोग ये सजेस्ट कर रहे हैं, मैं ये आपको पर्टिकुलरली सजेस्ट करूंगा, जो भी सप्लीमेंट्स है आप मेडिसिन के साथ ले सकते हैं। आप अपने डॉक्टर्स को कंसल्ट कीजिए अपनी फर्दर गाइडलाइन के साथ। इसके बारे में अगर मैं डिटेल में बताना चाहता था, बट पर्टिकुलरली साना की तरफ से मुझे बताया गया कि भाई हम लोग अपने रिस्ट्रिक्ट करेंगे लाइफस्टाइल और सप्लीमेंट। सो फ्रेंड्स, आई एम स्टॉपिंग हियर। तो मेरा जो भी ये प्रेजेंटेशन था, मैं आपको कोई सवाल होगा, क्वेश्चंस होंगे, आप मुझे पूछ सकते हैं। सिमर, आर यू देयर? Yes, Dr. Vijay. Are there any questions related? So I think the first few questions that came through. यस यस, So जो अमृत उर्कडे है, उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा था कि वो उनका बीपी जो है वो 200/100 है। सो अमृत जी, आपको ये बहुत सीरियसली लेना है क्योंकि आप ऑलरेडी हाइपरटेंसिव क्राइसिस के अंदर में आते हैं। और जब आपको ये अभी जरूर याद लेना है कि क्या आपका हाइपरटेंसिव क्राइसिस हाइपरटेंसिव अर्जेंसी है या हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है। अगर एंड ऑर्गन डैमेज नहीं हुआ है तो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है, अर्जेंसी है। और अगर एंड ऑर्गन डैमेज होना शुरू हो गया है तो आपके लिए इमरजेंसी बन गई है। इमीडिएटली आप डॉक्टर्स के पास जाइए और उनसे सारे सिस्टम को चेक कर लीजिए, कहीं आपके एंड ऑर्गन अफेक्ट हो रहे हैं जिसके वजह से बॉडी इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है और इतना ज्यादा आपका बीपी बढ़ा हुआ है। तो दिस इज व्हाट इज द रीजन बिहाइंड आपके ये है सप्लीमेंट और से। या जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि यूसाना सप्लीमेंट आर सेफ। सो यूसाना सप्लीमेंट्स आर सेफ इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि दीज आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द साइंटिस्ट who has experimented a lot and was a research oriented person. We have our own research team and every ingredients are tested and modified जो होता है right ingredient, right quantity and right quality में ही उसमें डाला जाता है। जो लिखा जाता है वही होता है। बहुत से जो अदर सप्लीमेंट्स में लिखते कुछ है देते कुछ है, क्योंकि ये जो फूड ग्रेड सप्लीमेंट्स होते हैं, ये दीज आर फूड मतलब सब इसको सर्टिफाई किया जाता है एजेंसी द्वारा और वही सप्लीमेंट्स होते हैं, इसलिए दे आर सेफ और मेडिसिन के साथ ले सकते हैं क्योंकि ये फिजियोलॉजिकल लेवल पे काम करते हैं, ये कोई पैथोलॉजिकल लेवल पे काम नहीं करते। ये आपको जो चेंजेस को रिवर्स करने में हेल्प करेंगे। बट फिर भी मैं यही सलाह दूंगा कि आपके जो फिजिशियंस है, डॉक्टर है, उनसे पूछिए जरूर कि मेरे जो कॉज है इसमें मैं अगर लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करता हूँ,
कहीं मैं विटामिन सप्लीमेंट्स लेता हूँ या कोई मिनरल सप्लीमेंट्स लेता हूँ या कोई बायो एक्टिव इंग्रेडिएंट लेता हूँ, तो उससे मुझे नुकसान होगा क्या? और जहां तक मेरा अनुभव है, उससे नुकसान नहीं होता। बहुत सारे कुछ सप्लीमेंट्स ऐसा भी पूछा गया है कि ये शुगर को रिड्यूस करते हैं क्या? तो मैंने आपको कहा कि ओवरऑल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, कि जहाँ पे शुगर मेटाबॉलिज्म है, इंसुलिन की, जैसे मैंने आपको बताया है कि जो अल्फा लाइपोलिक एसिड जो है वो इंसुलिन को इफेक्ट भी करता है, तो वहां पे वो काम करता है। विटामिन ई है, जिंक है, ये सेलेनियम है, क्रोमियम है। जो कोर एसेंशियल है उसके अंदर क्रोमियम पाइकोलिनेट भी होता है। जो क्रोमियम पाइकोलिनेट होता है ये इंसुलिन के ऊपर वर्क करता है, इंसुलिन सप्लीमेंट्स, इंसुलिन रेगुलेशन के ऊपर में हेल्प करता है, इंसुलिन सिक्रीशन के ऊपर हेल्प करता है। सो सप्लीमेंट्स दो जो भी आज विषय हाइपरटेंशन का था, इसीलिए मैंने हाइपरटेंशन रिलेटेड सप्लीमेंट्स का क्या रोल है वो आपको बताया है। हम आगे आने वाले दिनों में दूसरे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में भी बात करेंगे, और उसके अंदर में आपको सप्लीमेंट्स का वहां पे क्या रोल होता है, जैसे डायबिटीज है, जैसे या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, वहां पे क्या रोल प्ले होता है, ओबेसिटी में क्या रोल प्ले होता है, तो ये सारी चीजें आपको बताएंगे। हमारे पास में और एक सप्लीमेंट्स है, न्यूट्रामिल्स है। ये न्यूट्रामिल पर्टिकुलरली तो जो लोग ओबेज है उनकी ओबेसिटी को कम करने के लिए यूज किया हुआ सप्लीमेंट्स है। ये जो है ये पाउडर फॉर्म में आता है, ये ड्रिंक्स करके इसको आप यूज करते हैं। ये नॉट ओनली प्रोवाइड करता है आपको प्रोटीन, उसके साथ में गुड क्वालिटी फैट और विटामिन मिनरल्स भी रेगुलर प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपका वेट मैनेजमेंट हो सके। सिमर है और कोई क्वेश्चन है मैं मिस कर रहा हूँ? No. There was a question about whether the same supplements can help with blood sugar. Did we address that? Yeah, that I have addressed. That some of the ingredients present in this supplements, ये कुछ ingredient है जो इन supplements में है, जैसे कि कोर एसेंशियल्स में है, जो हमारा एक प्रोडक्ट है, उसके अंदर के जो सप्लीमेंट वो ब्लड शुगर को भी हेल्प करते हैं। Okay, great. मैंने कहा हेलो, Yeah. जो कोकिनॉन करके एक जो सप्लीमेंट्स है जिसके अंदर में अल्फा लाइपोलिक एसिड आता है और क्यूटेन आता है, जो एनर्जी को बढ़ाता है, आपके एनर्जी मेटाबॉलिज्म को। द मोमेंट सम ऑफ जो लोग ये ले रहे हैं उनके हमको टेस्टिमोनियल मिले हैं, उन्होंने पर्सनली हमको बताया गया है कि जब से उसको ये लेना शुरू किया है उनका एंथुजियाज्म बढ़ा है, उनका एनर्जी लेवल बढ़ा है, और वो दे फील लाइक मोर एक्टिव। एंड बिकॉज ऑफ दैट वो सेडेंटरी हैबिट उनकी कम हो गई है, एंड नेचुरली इनडायरेक्टली ये वेट मैनेजमेंट पे इफेक्ट कर रहा है, सेम टाइम ये उनको मोर प्रोडक्टिव बना रहा है। सो एनी क्वेरी क्वेश्चंस, और शुड वी स्टॉप हियर? Yeah, I think we can stop here. It looks like everybody's just saying amazing session, amazing information, and we're looking forward to having you come back, Dr. Vijay, and share with us about more topics. या फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू टेल यू, मैं होलिस्टिक वेलनेस कंसल्टेंट हूँ। मैंने अपने लाइफ का मिशन बनाया है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये होलिस्टिक हेल्थ का इंफॉर्मेशन को पहुंचाऊं और उनको गाइड करूं। सो फॉर मी माय सक्सेस इज अ जर्नी, इट इज नॉट एंड टू इट, and I always say that everything will be okay in the end. If it is not okay, then it is not the end. So we need to keep trying. So I thank you, Mercy, Boku, Gaitsia, Dhanyavad. You can find, these are my numbers, my email ID. You can reach out to me. आप लोग मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं। और भी कोई क्वेरीज आपके होंगे, आपको उसाना के प्रोडक्ट के बारे में जानना है, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के बारे में जानना है, so please feel free to connect me. Thank you so much, Dr. Vijay. This was an amazing session. Thank you, thank you, thank you so much. Thank you, Simar, for your support, and आपने इसको जो रेगुलेट किया, मॉनिटर किया,
So I'm thankful to you also. I'm thankful to all my participants. मेरे जितने फ्रेंड्स हैं जिनको मैंने भेजा था, मैं देख पा रहा हूँ कि काफी लोगों ने इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं एंड ज्वाइन किया है. सो आई एम थैंकफुल टू देम. आई एम थैंकफुल टू ऑल द अदर उसना एसोसिएट्स ऑल्सो, कि जो यहाँ पे आए हैं और जिन्होंने इसका लाभ उठाया. All right, thank you everyone. Have a good night. Bye bye. बाय बाय. थैंक यू.